students, good morning. Today we will see the last and third part of chapter number 4 of English, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So, in third part, what happened that after lunch, when Bipin Babu realized that he could not work, he could not work properly, then he realized that in the 25 years this kind of thing was never or had never happened to him, and he had been with the firm. So Bipin Babu had been in that firm for 25 years, and for the first time he was feeling that he was sick. He could not continue working. His head was in a whirl. He came home. It was only 2:30, and at 7:30 there was a visitor named Chunni Babu. So Chunni Babu came to meet him. Meet him means to Bipin Babu. Bipin Babu knew why Chunilal had come, and they were at school together, means they were childhood friends, and they were together in school, means they were classmates, they were studied together in the same class. Now Chunilal was having a rough time, means his economical condition is not good, his life is not good. That's why we can say Chunilal was having a rough time. He wanted Bipin Babu's help about a job, means Chunilal needs a job. Chunilal wanted a job, and for that job he wanted a help from Bipin Babu. That through his contacts, through Bipin Babu's contacts, Chunilal can get a job. But here Bipin Babu knew he could not do anything and told him so. Means Bipin Babu says that he could not do anything, and he told Chunilal that I can't help you to find a job for you. But here Chunilal is not believing. Chunilal was not believed that Bipin Babu couldn't help him. So yet Chunilal kept pressing on him to find a job for him or to help him to find a job. So at first he sent word that he could not meet Chunilal for a few weeks. So then, remembering something, he hurried down to see him. He asked Chunilal if he remembered him going to Ranchi in 1958, and of course Chunilal did. He looked at Bipin Babu's face. He looked at Bipin Babu's face and he looked at Bipin Babu's face with concern, means he stared him hardly. Bipin Babu stared Chunilal hardly. He would a man with so sharp a memory forget it? Means how can he forget that he had been in Ranchi? He never remembered
that when he was there in Ranchi. So Chunilal had himself been at the railway station to see him off. He expressed great concern about Bipin Babu's health. Bipin Babu said that it must be the hard work. He told Chunilal that he would consult a specialist. तो यहाँ पे क्या होता है कि बिपिन बाबू जो है, ठीक है, उसके बारे में कि भाई वो लंच कर लेते हैं, तो लंच के बाद जब वो काम करने के लिए बैठते हैं तो काम में उनका मन नहीं लगता, ठीक है। और 25 सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं है। 25 सालों से वो काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट से काम करते हैं, लेकिन 25 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि वो काम करने बैठे हो और उनका मन ना लगा हो और वो उठ गए। तो बिपिन बाबू जो फर्म में काम करते थे, वो फर्म में वो पिछले 25 वर्ष से वहाँ काम कर रहे थे। पहली बार वो अपने आप को, है ना, सिक फील कर रहे थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनका सिर जो था वो चकरा रहा था। तो क्या होता है कि वो घर आ जाते हैं। अभी केवल क्या हुआ था, 2:30 बजा था, मतलब 2:30 ही हुए थे कि 7:30 पर उनके पास एक मुलाकाती आया। मतलब वो 2:03 पे 30 पे घर आ जाते हैं और शाम को 7:30 पर उनके पास एक विजिटर उनसे विजिट करने आता है, जिनका नाम है चुन्नी बाबू। और यहाँ बिपिन बाबू ये भी जानते थे कि चुन्नीलाल जो है, ठीक है, वो उनके पास क्यों आया है। वो स्कूल में साथ साथ, वो दोनों फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। अब चुन्नीलाल जो है वो अभी बुरे वक्त से गुजर रहा था, मतलब उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था, इकोनॉमिकली, सोशली, वॉटेवर। और किसी काम के सिलसिले में वह बिपिन बाबू की सहायता चाहता था और बिपिन बाबू जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते और ऐसा उसे बता चुके थे। मतलब वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, किसी भी काम में किसी सहायता कर सकते नहीं है। और ये आज नहीं, पहले भी उसे बता चुके थे। फिर भी चुन्नीलाल जो है वो बिपिन बाबू के पीछे पड़ा रहता है कि नहीं, आपको मेरी सहायता करनी होगी, मेरे को कुछ ना कुछ मदद करनी होगी, कुछ ना कुछ। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले उन्होंने यह संदेश भेजा कि कुछ सप्ताह तक वे चुन्नीलाल से नहीं मिल सकते। तो है ना, मतलब वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, वो उनकी सहायता नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने चुन्नीलाल को मैसेज भेजा, संदेशा भेजा कि वो कुछ सप्ताह तक, कुछ वीक्स तक, ठीक है, वो चुन्नीलाल को मिल सकते नहीं है। फिर कुछ याद करके शीघ्रता, मतलब जल्दी से ही वो सीढ़ियाँ उतरते हुए उससे मिलने आए। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने चुन्नीलाल से पूछा कि क्या उसे 1958 में रांची की कोई भी बात याद है, रांची जाने की कोई भी बात उन्हें याद है। तो निसंदेह चुन्नीलाल को वो याद थी। तो चुन्नीलाल कहता है कि हाँ, मुझे याद है। उसने चिंता से बिपिन बाबू के चेहरे को देखा और इतनी अच्छी स्मरण शक्ति, मतलब इतनी अच्छी याद शक्ति वाला कोई व्यक्ति इस बात को कैसे भूल सकता है, ये चुन्नीलाल को विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो कहता है कि चुन्नीलाल तो खुद उन्हें मतलब यहाँ बिपिन बाबू को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया था और उसने बिपिन बाबू के स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंता भी जताई थी उस समय। और बिपिन बाबू ने उन्हें कहा था कि अवश्य अधिक श्रम के कारण ऐसा हुआ होगा और उन्होंने चुन्नीलाल से कहा कि वे किसी विशेष, मतलब किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लेंगे।
अब when he met a specialist, बिपिन बाबू went to डॉक्टर परेश चंद्र, है ना, बिपिन बाबू went to meet परेश चंद्र and put his problems before him. Now what kind of problem he is facing? That he lost his memory. He is not memorized when he had been in Ranchi in 1958. So this kind of problem he discussed with the doctor. The doctor was puzzled. He told him that his was an unusual case. He remembered everything except his trip to Ranchi. Yet he was somehow convinced of having been there. So the doctor suggested that he should go to Ranchi now. The sight of the place might remind him for the trip. अब क्या होता है यहाँ पे कि जो वो डॉक्टर के पास, एक विशेष डॉक्टर के पास जाते हैं उनकी सलाह लेने के लिए। तो बिपिन बाबू डॉक्टर परेश चंद्र के पास गए और उन्होंने, मतलब बिपिन बाबू ने उसके सामने अपनी समस्या रखी और डॉक्टर की समझ में, लेकिन जो डॉक्टर है उनकी समझ में ये ना आया, ठीक है, कि ये कैसी समस्या है। हाँ, उन्होंने बिपिन बाबू को बताया कि उनका यह मामला तो असाधारण है और उन्होंने एक सुझाव दिया। उनको ये बात खटक, डॉक्टर की ये बात है कि उन्हें अपनी रांची की यात्रा ही क्यों याद नहीं, उनको सब कुछ याद है लेकिन अपनी रांची की यात्रा क्यों याद, फिर भी कारणवश उन्हें विश्वास था कि वे वहाँ गए थे। तो डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि अब वे फिर से रांची जाए और शायद उस स्थान को देखकर, वो जहाँ जहाँ गए हैं, ठीक है, रांची में जहाँ जहाँ घूमे थे, उस स्थान को देखकर शायद उन्हें वापस कुछ याद या जाए। तो वो उन्हें सलाह देते हैं कि वो वापस रांची जाए। सो नाउ बिपिन बाबू एट रांची, बिपिन बाबू act upon his doctor's advice. Bipin Babu went to Ranchi. At the railway station of Ranchi itself, he felt certain of one thing, and it was that he had never been there before. He went round the city and had some feeling. He decided to try a trip to Hardu also. So he went there, and at 5 o'clock the same afternoon, two Gujarati gentlemen found him, and he was lying unconscious beside a boulder in Hardu. On regaining consciousness, his first words were, "I am finished. There's no hope left." तो डॉक्टर की सलाह पे बिपिन बाबू जो है वो रांची पहुंचते हैं और रांची के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि वो वहाँ कभी गए ही नहीं। उन्होंने शहर का चक्कर लगाया, पूरे शहर का चक्कर लगाया और यही भावना मतलब उनके मन में यही रहा कि वो, उनकी जो मानना था कि वो कभी रांची नहीं आए, ठीक है, वो ही जो बात है उनके मन में रही। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो हुर्रू जो है उसकी भी याद करके देख लेते हैं, शायद हुर्रू जाके उनको कुछ याद आ जाए। तो वो वहाँ भी जाते हैं
और उसी दिन दोपहर क्या होता है, 5 बजे 2 गुजराती पुरुष जो है वो उन्हें देखा और वे पानी के पास एक गोल चट्टान के निकट हुड्रू में मूर्छित पड़े थे। मूर्छित मतलब बेभान अवस्था में पड़े थे और होश में आने पर उनके पहले शब्द थे कि मैं खत्म हो गया है, अब कोई आशा नहीं है, मैं खत्म हो गया हूँ, अब मेरी कोई आशा नहीं है। अब बिपिन बाबू को क्या, नाउ वी डिस्कस मोर। बिपिन बाबू is cured. Next morning, he was back in Calcutta. He was shattered man. He wondered if he was going to end up in an asylum. So he rang up Dr. Chandra and asked him to come over. So that day, he went to bed with an ice bag clamped on his head. Then he received an envelope and he went through the letter at once, whatever the letter in envelope. So it was from Chunilal, and in his letter, Chunilal had first expressed his bitterness for getting no help from Bipin Babu. Then frankly told Bipin Babu that his memory was all right and it was his plan in retribution against his unfeeling behavior. So then he told Bipin Chaudhary how he had played a practical joke upon him. So this he did with the help of Mr. Ghosh and Dinesh Mukherjee. Now it was clear to Bipin Babu that he had not really lost his memory. तो अगले दिन रांची से घूमने के बाद अगले दिन वो सुबह सुबह कलकत्ता वापस आ जाते हैं। वो अंदर से टूट चुके थे, ठीक है। वो सोच रहे थे कि क्या उनका अंत किसी पागल खाने में होगा, उनको क्या मैं पागल खाने में पागल हो गया, मैं पागल हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया और उन्हें उनके घर बुलाया, मतलब आने के कहा कि मुझे मिलने आओ। उस दिन बर्फ़ की थैली वो अपने सिर पर बांध के, मतलब बर्फ़ में जो थैली, उसका सर ठंडा हो इसलिए वो थैली में बर्फ़ डाल के उनके सर पे रखा हुआ था। तब उन्हें एक लेटर मिलता है और उन्होंने तुरंत ही वो लेटर पढ़ा। और वो लेटर किसने लिखा था? चुन्नीलाल ने। तो इस पत्र में पहले तो बिपिन बाबू से कोई सहायता न मिलने पर चुन्नीलाल ने अपनी नाराज़गी जताई थी। फिर उसने बिपिन बाबू को साफ साफ लिखा था कि उनकी स्मरण शक्ति ठीक थी, मतलब वो उनकी याददाश्त कहीं नहीं गई, वो उनकी याददाश्त शक्ति जो है वो ठीक थी। उनके रूखे व्यवहार का बदला लेने की उसकी योजना थी, मतलब जो उनका जो व्यवहार था, है ना, वो बहुत सख्त व्यवहार के थे, तो उनका बदला लेने के लिए ये योजना बनाई गई थी। फिर उसने बिपिन चौधरी को बताया कि उसने किस प्रकार उससे मजाक किया और उसने वैसा मिस्टर घोष और दिनेश मुखर्जी से मिलकर किया, मतलब उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था। तो यहाँ पे अब बिपिन बाबू को स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में उनकी स्मरण शक्ति जो है वो लुप्त नहीं हुई है, उनकी स्मरण शक्ति जो है वो ऐसी की वैसी है। Now, when Dr. Chandra came, Bipin Babu told a lie. He said that he had remembered everything on reaching Ranchi railway station, and he said that he had called him for a painkiller. So he had the pain in the hip due to the fall in Ranchi. तो यहाँ पे क्या है कि बिपिन बाबू झूठ बोलते हैं। किन से? तो डॉक्टर चंद्रा से। तो जब डॉक्टर चंद्रा घर आए
तो बिपिन बाबू ने उनसे झूठ बोला कि उन्होंने रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें सब कुछ याद आ गया था। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने यहाँ उन्हें उनकी जो पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, रिब में, जो रिब है हमारी बॉडी में जो रिब होती है वहाँ पे जो पेन हो रहा है उसके लिए पेन किलर के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया था। तो ये पेन कैसे हुआ उन्हें, तो वो कहते हैं कि रांची में वहाँ पे मैं गिर गया था और उनके कारण जो रीब की हड्डी होती है, पीछे की हड्डी, रूब की हड्डी होती है पीछे, वहाँ उन्हें दर्द हो रहा है और इसलिए उन्हें वो क्या चाहिए, उसलिए उन्हें वो टिकट चाहिए, अरे सॉरी, वो टैबलेट पेन किलर उन्हें चाहिए। सो हियर वी हैव फिनिश द चैप्टर I will send you a exercise of this chapter with this video. You have to note down in your notebook. Till that, thank you. Have a nice day.